بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی چیز جو آج ہم سیکھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کے شر سے. اعوذ باللہ پڑھنا آپ میں سے ہر ایک جانتا ہے کہ جب بھی قرآن مجید کھولیں ہمیں اللہ تعالیٰ کی پناہ لینی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہم اعوذ باللہ کیوں پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ پڑھنی کیوں ضروری ہے؟ آج میں سوال کر رہی ہوں اور توقع رکھتی ہوں کہ آپ اس کا جواب لاجیکلی سیکھیں گے بھی اور لاجیکلی جواب دینے کی پوزیشن میں بھی ہوں گے انشاءاللہ. پہلی بات ہے بہت اہم، گہری، سادہ. اعوذ باللہ پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس لیے ہم اعوذ باللہ پڑھتے ہیں. اور اس کی دلیل سورہ النحل کی آیت نمبر 98 ہے. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب آپ قرآن پڑھیں تو شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں. حکم ہے نا؟ اور اللہ تعالیٰ کا حکم اگنور کرنے والا نہیں ہوتا. اگنور کرنے والا، سر جھکانے والا تو نہیں ہوتا، سرکش ہوتا ہے. اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں ہمارے دین میں اللہ تعالیٰ کے امر کا، حکم کا کیا مقام ہے، تو اصولی طور پر الامر یفید الوجوب، اللہ کا حکم واجب ہونے کا فائدہ دیتا، واجب ہے. ہم سب نے یہ دیکھا اور انشاءاللہ پورے قرآن میں اسی اعتبار سے دیکھیں گے. ریسپانسبلٹی لینی ہے ہمیشہ کے لیے، اعوذ باللہ ضرور پڑھنی ہے، اور یہ دلیل دیتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اس پر اجر و ثواب کی امید رکھنی ہے انشاءاللہ. آپ جانتے ہیں نا اجر و ثواب کی امید رکھنا تقویٰ ہے. اور کیا آپ جانتے ہیں کہ فہم قرآن کی شاہ کلید کیا ہے؟ ہر ایک چیز کی کنجی ہوتی ہے نا، ایک ماسٹر کی ہوتی ہے. انڈرسٹینڈنگ آف قرآن کے لیے ماسٹر کی کیا ہے؟ ہم نے کل دیکھا تھا تقویٰ. اور تقویٰ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھ کر اس کے حکم کی اطاعت کرنا. آپ اطاعت تو یوں بھی کر لیں گے، یہ مطلوب نہیں ہے. مطلوب یہ ہے کہ آپ جب بھی اللہ تعالیٰ کا حکم مانیں اس پر اجر کی امید رکھیں. اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھ کر اعوذ باللہ پڑھنی ہے. اس کے ساتھ آپ کو اس کی انڈرسٹینڈنگ ملے گی. یہ تقویٰ ہے. اس تقویٰ کی وجہ سے آپ رسپانسبلٹی لیں گے، پھر آپ کا دل کھلے گا. بھلا اعوذ باللہ پڑھنے کے لیے بھی کسی کا دل نہیں کھلتا؟ بولتے کیوں ہیں؟ دلیل کی روشنی نہیں ہوتی. یہ دلیل ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس کو پورا کرنا ہے. اور اللہ پاک کا حکم کیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا حکم یاد نہیں رکھیں گے. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب بھی آپ قرآن پڑھیں آپ اسے دہرائیں گے، کیونکہ آپ کے رب کا حکم ہے جس نے آپ کو پیدا کیا. پتہ ہے آپ کی شکل و صورت نہیں تھی، نہ دیکھنے والی آنکھیں تھیں، نہ سننے والے کان تھے، نہ سمجھنے والا دل و دماغ تھا، نہ اعضاء کام کرتے تھے. پھر اللہ پاک نے آپ کو ڈیزائن کیا، آپ کو پیدا کیا. کتنی پیاری صورت بنائی ہے. مجھے آپ کے سامنے اس آیت کے یاد کرنے سے پہلے ایک اور آیت رکھنی ہے، سورہ الانفطار کی. رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الانسان، اے انسان. وہ انسان کون سا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پکارا ہے؟ میں چاہتی ہوں کہ آپ اس ٹرانس میں آ جائیں، اس فیز میں آ جائیں جیسے ہم نے قرآن سیکھا. وہ انسان کون سا ہے؟ کون بتائے گا؟ جی میں. یس، الحمدللہ رب العالمین. مجھے میرے رب نے کہا ہے اور میں نے اپنے رب کے حکم کے مطابق غور کرنا ہے، ثواب کی امید رکھ کر. اس پر بھی مجھے ثواب ملے گا، کیونکہ غور و فکر کرنا دل کی عبادت ہے. آپ کا ہر عمل عبادت بن جائے گا. یہی تو انڈرسٹینڈنگ ہے. تو جب آپ امید باندھیں گے تقویٰ ہے. اور آپ دیکھیے تقویٰ کے ساتھ کانشیسنس آ رہی ہے نا، اور سیلف رسپانسبلٹی. یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے اپنے رب کریم کی طرف سے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ الذی خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا. سوچو تو صحیح، آج سے 100 برس پہلے آپ کیا تھے؟ اپنی پیدائش سے پہلے کیا تھے؟ کچھ بھی نہیں، مٹی کا ذرہ. اس نے جیتا جاگتا، سنتا، بولتا، دیکھتا، سمجھتا انسان بنا دیا. تو ہمارا رب ہم سے پوچھتا ہے اے میرے پیارے بندے، یہ تو بتا تجھے کس نے دھوکا دیا؟ تجھے کس نے تیرے رب کریم کی یاد بھلا دی؟ دیکھو تو صحیح وہ کون ہے جس نے تمہیں تمہارے رب کے بارے میں سوچنے نہیں دیا. اپنے رب کو تو دیکھو، الذی خلقک، وہ جس نے تمہیں پیدا کیا. پیدائش کے مراحل کو دیکھیے. ان مراحل میں پہلا مرحلہ تھا جب آپ آدھے ماں کے پیٹ میں تھے اور آدھے باپ کے پیٹ میں. پھر وہ وقت آیا جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو
किस जगह से बाप के पेट से निकाला और किस जगह से माँ के पेट से निकाला। या अल्लाह तू कितना करीम है, तूने उस इंसान को इज्जत दी जो नुतफा था। नुतफा ऐसा इज्जत वाला हो सकता है? तूने उस इंसान को इज्जत दी जो खून का लोथड़ा था, जिसकी कोई शक्ल नहीं थी। तूने ऐसा इंसान बनाया जो बेशक्ल की बोटी था, गोश्त का लोथड़ा, न देखे न सुने न बोले न समझे। तूने हमें आंखें दी, नाक, होंठ, कान, ब्रेन, दिल, सभी कुछ। सुभान अल्लाह, फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। बड़ा बरकत वाला है अल्लाह ताला, सब तखलीक करने वालों से ज्यादा अच्छी तखलीक करने वाला। उसने कैसा बनाया, किस कदर नेक सुख से दुरुस्त करके बनाया, वो पूछता है और पूछने वाला हमसे जवाब चाहता है। ये बताओ कि तुम्हें किसने धोखा दिया? जब तुम बिल्कुल ठीक ठाक हो, जब तुम्हारी मशीनरी बिल्कुल ठीक काम कर रही है, फिर तुमने मुझे याद क्यों नहीं किया? फिर तुमने मुझे अपनी यादों में क्यों नहीं बसाया? तुमने तो अपनी यादों में किसी और ही को बसाए रखा। तुम्हारे लिए सोचा किसने? तुम्हें सब कुछ दिया किसने? तुम्हारे रिस्क का इंतजाम किसने किया? वो जिसने सब कुछ किया, तुम क्यों एहसान फरामोश बन गए? तुमने उसके एहसान को याद ही ना किया। अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फ़अदलक फ़ी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक। जिसने तुझे पैदा किया, फिर तुझे दुरुस्त बनाया, फिर तुझे बराबर किया, जिस सूरत में उसने चाहा तुझे जोड़ दिया। अब बिल्कुल फिट हो। जानते हैं क्या जवाब है? क्यों भूले हैं? कल्ला बल तुकज़्ज़िबून बिद्दीन। हरगिज़ नहीं, बल्कि तुम जज़ा के दिन को झुठलाते हो। तुम्हें जज़ा का तसव्वुर ही नहीं होता। तुम बदले की उम्मीद भी नहीं रखते और बदले के दिन को याद भी नहीं करते। बदला मैटर करता है, अजर, जज़ा। इंसान को अपनी जिंदगी में झांकने का मौका मिले तो उसे पता चले कि उसे हर चीज में बदला चाहिए होता है। बहुत मुश्किल से कोई सेल्फलेस बनता है। इंसान वफाद परस्त है, वो वही काम करना चाहता है, अकल का तकाजा है जिसमें उसका फायदा हो। वो अपने फायदे को फरामोश नहीं कर सकता। तो अल्लाह ताला ने याद दिलाया कि देखो, तुम्हें तो यही याद नहीं रहता कि बदले का दिन आएगा, इसलिए तो बदले की उम्मीद नहीं रखते। तो आपने औज़ु बिल्लाह पढ़नी है बदले की उम्मीद रखकर, क्योंकि बदले का दिन आने वाला है और बदले के दिन की तैयारी करनी है। जज़ा सजा का दिन कितना करीब है। जब किसी की मौत आती है, किताबें जिंदगी बंद हो जाती है, फिर कभी वो नेक अमल करने की पोजीशन में नहीं रहता। यही जिंदगी है, यही वक्त है जिसमें आपने कमाई करनी है। ये जिंदगी कमाने के लिए मिली है, तो आप जो कुछ भी करें, आपका रब आपसे ये चाहता है आप उस पर बदले की उम्मीद रखें। आप टाइम लगा रहे हो, आप अपने सच्चे जज्बे उसके नाम कर रहे हो और आपको बदले की उम्मीद ही ना हो, ये कैसे हो सकता है? बदले की उम्मीद के साथ ही नेक अमल करने मुमकिन होते हैं। तो औज़ु बिल्लाह पढ़नी है बदले की उम्मीद रखकर, लेकिन जब तक आपके पास दलील नहीं होगी आप बदले की उम्मीद नहीं रख सकेंगे। इसलिए दलील याद कर लें। दलील रोशनी है, और दलील क्या है? फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन। दूसरी दलील है, कुरान हमें अल्लाह ताला का रास्ता बताता है और शैतान हमें इस रास्ते से रोकना चाहता है, और सिर्फ अल्लाह ताला ही हमें शैतान के शर से बचा सकता है। शैतान के शर को दूर करना वाजिब है। जैसे अल्लाह ताला के हुक्म को मानना वाजिब है ना, ऐसे ही शैतान के शर को दूर करना वाजिब। ये दूसरी दलील है। आप इल्म सीखने जा रहे हैं, इल्मी दलाइल है, आपसे हमारी तवक्को है कि दलाइल जरूर सीखेंगे। तो ये दूसरी दलील है, कुरान हमें अल्लाह ताला का रास्ता बताता है और शैतान हमें इस रास्ते से रोकना चाहता है। सिर्फ अल्लाह ताला ही हमें उसके शर से बचा सकता है, इसलिए शैतान के शर को दूर करना वाजिब है और उसके शर को दूर करने के लिए औज़ु बिल्लाह पढ़नी है इंशाअल्लाह। यहां तक जब हम पहुंचे दो दलाइल के साथ, तो सवाल ये पैदा होता है शैतान कौन है? हमारे यहाँ लोग जानते तो हैं, लेकिन फिर गलतफहमी में मुब्तला हो जाते हैं। शैतान जिन है। गलतफहमी ये होती है कि फरिश्तों में रहता था फरिश्ता है। बहुत से लोग, बहुत से उलमा भी गलतफहमी में मुब्तला। तो शैतान के बारे में जान लीजिए, जिन है, इंसान का दुश्मन है, और हमारे पास दलील है इस बात की कि शैतान जिन है। रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, कान मिनल जिन्नि फफसक़ अन अम्रि रब्बिही। वो जिन्नों में से था, चुनांचे उसने अपने रब के हुक्म की नाफरमानी की। ये सूरह काफ की आयत नंबर 50 है। शैतान इबादत करता था, नाफरमान कैसे बन गया? क्या इबादत गुजारियां भी नाफरमानी तक ले जाती हैं? हाँ, ऐसा हो जाता है। इबादत गुजार भी नाफरमान बन सकता है जब इबादत गुजार के अंदर रिएक्शंस लगे। मैं इस मोड़ पर ये सारी बातें इसलिए वाज़ेह करना चाहती हूँ कि आप
अल्फाज का इल्म सीख लें, आप तफसीर सीख लें, आप उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश भी कर लें, लेकिन जब कभी आप नफसियाती तौर पर अपनी हिफाजत नहीं करेंगे और अल्लाह ताला से मदद नहीं मांगेंगे, तो नफसियाती तौर पर रिएक्शन लगाने के लिए इब्लीस काम करता है। जब कभी इंसान के अंदर कोई रद्द अमल उभरता है, उसकी वजह से इंसान की तवज्जो अल्लाह ताला की तरफ से उसकी इबादत से हट जाती है। ये रिएक्शन कैसे लगता है? इतने इंसानों के ताल्लुकात, किसी से बातचीत हुई, किसी को देखा, किसी को सुना, किसी ने कुछ कह दिया, कोई बात खिलाफे मिजाज हो गई, क्या गुस्सा आता है? आता है। ये रिएक्शन है। गुस्सा आना फितरी अमल है, लेकिन अल्लाह ताला चाहते हैं कि हम अपने ऊपर कंट्रोल करना सीखें, खुद को फतह करना सीखें। इंसान हर चीज को कंट्रोल करना चाहता है, माल को कंट्रोल करके रखता है, अपनी जिंदगी के बारे में वो कहता है मेरी जिंदगी, मेरे मामला, मैं जो चाहूं करूं। कंट्रोल चाहता है इंसान अपने घर पर, अपने माल पर, अपने रिश्तों पर, और जाने जहां जहां तक किसी का दायरा वसी हो जाता है, हर जगह इंसान कंट्रोल चाहता है। लेकिन कितनी अजीब बात है कि इंसान खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाता, अपने आप को। बगैर कंट्रोल के इंसान जिंदगी गुजार रहा है, और आप देखिए कि उसके अंदर रिएक्शंस लग सकते हैं, सलाहियत है। अल्लाह ताला ने इम्तिहान के लिए इंसान को ऐसा बनाया है कि बाहर से जब कुछ हो तो अंदर से इंसान का पता चले काबू है या नहीं, अपने ऊपर कंट्रोल है या नहीं। जिस इंसान का खुद पे कंट्रोल नहीं होता, आप पे से बाहर हो जाता है। कभी आप गुस्से में आप पे से बाहर हुए हैं? मेरा नहीं ख्याल कि किसी को इसका तजुर्बा ना हुआ, होते रहते हैं। अब देखिए, गुस्सा एक रिएक्शन है, किसी की बात की वजह से आए या माहौल में अपनी तबीयत मिजाज के खिलाफ कोई चीज पाए। मिसाल के तौर पर आपने घर को बिल्कुल तरतीब से रखा और किसी ने सारी चीजें बेतरतीब कर दी। अब ऐसे मौके पे जाहिर इंसान ने समझा है, उसको तकलीफ हुई है। अब या तो वो खुद को कंट्रोल करके कूल रह सकता है या आग लग जाएगी। मैं कुछ और रिएक्शंस भी आपके सामने रखना चाहती हूँ। जब कभी कोई गुस्सा नहीं कर सकता ना, और आमतौर पर ऐसा होता है कि जब कभी सामने वाला ज्यादा ताकतवर हो ना, कुव्वत वाला हो, पावर हो किसी के पास, उसके सामने गुस्से का इजहार नहीं हो सकता। फिर जब गुस्से का इजहार नहीं हो सकता तो वो गुस्सा दब जाता है, दबते दबते वो गम बन जाता है। गम, क्योंकि इंसान को तकलीफ होती है कि मैं इजहार भी नहीं कर सकता। उस तकलीफ का इलाज करना चाहिए, लेकिन अगर किसी को ये पता चल जाए कि ऐसा तरीका भी है जिससे इंसान को तकलीफ ही ना हो, तो जाहिर है कि वो तरीका इख्तियार किया जा सकता है। लेकिन आप देखेंगे फिर ऐसे में लोग बहुत इररिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास है वो गुम होने लगता है। अब आप देखिए, खुद पे कंट्रोल ना हो, ना गुस्सा करना है ना गम, फिर क्या करना है? अब कुछ ना कुछ तो इंसान को करना है ना। अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि इंसान इस्लाह करे अपने माहौल की, उसमें अपना रोल प्ले करे, लेकिन ना तो बॉम्ब की तरह ब्लास्ट हो जाए, ना दीमक की तरह खुद को खा जाए, क्योंकि गम दीमक की तरह होता है ना, खा जाता है। जैसे अमजद इस्लाम अमजद कहता है, पेड़ को दीमक लग जाए या आदमजाद को गम, दोनों ही को अमजद हमने बचते देखा कम। तो अल्लाह ताला ये नहीं चाहते कि हम कभी गुस्से में, कभी गम में, और फिर हम आगे के रिएक्शंस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि और क्या रिएक्शंस हैं, क्योंकि एक के बाद अगला, फिर उससे अगला स्टेप आता है। अब आप देखिए, किसी को गुस्सा आया, ऐसा क्यों हुआ, किसी ने मुझे ऐसा क्यों कहा, किसी के रवैये से, किसी काम से, किसी मामले में गुस्सा आ गया। अब क्या होगा? ये शख्स हमेशा ही ऐसा करता है। अब अगली स्टेज आ गई बदगुमानी की, बुरा ख्याल दिल में चिपकने लगता है। अब आप देखिए, कुरान पढ़ रहे हैं, गुस्सा भी आ रहा है, और साथ साथ तबाही का आगाज भी हो गया। अल्लाह ताला के रास्ते पे चलने वालों के रास्ते में जो हर्डल्स आती हैं, उन्हें पता भी नहीं लगता हर्डल्स कहां से आ गई, रियली नहीं पता चलता, क्योंकि इंसान जो कुछ खुद कर रहा होता है वो हक समझता है। क्या किसी ने मेरे साथ इतना बुरा किया तो मुझे गुस्सा भी ना है, यानी वो गुस्सा करना समझता है कि ये मेरा राइट है, इस मौके पर मुझे यही कुछ करना चाहिए। और अगर गुस्सा ना कर सके तो गम करना, इंसान अपना हक समझ ले। और अगर उस इंसान को देखें जो गम करता है, वो आहिस्ता 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 जितना भी कोशिश कर ले, कोई बहुत अपने ऊपर काबू पाने वाला है तो वो होपफुल हो सकता है, वरना होपलेस होने लगता है। नाउमीदी भी बेसिकली किसी न किसी रिएक्शन की वजह से आती है, हिम्मत टूट जाती है। जिंदगी में कोई काम करने के लिए, बड़ा काम करने के लिए इंसान हिम्मत नहीं कर पाता, कम हिम्मती। फिर उसको खाने में तो उसका जी लग जाए, पहनने में जी लग जाए, और इसी तरह से दोस्तों में तो जी लग जाए, प्रोडक्टिव काम करने के काबिल नहीं रहता, चाहे वो कुरान पढ़ने वाला, चाहे वो पढ़ाने वाला, क्योंकि अंदर ही अंदर कुछ और हो रहा है। जानते हैं अंदर और क्या होता है? अगर गुस्से को कंट्रोल नहीं करते, बदगुमानी से बुक्स से कीने से हसद तक जा बात पहुंचती। और कुछ मामला ऐसे होते हैं जहां जंप करके डायरेक्ट
जेलसी तक जा पहुंचती है बात। हमारे यहाँ जेलसी को लोग जो है वो नॉर्मली यानी मुख्तलिफ मामलात में जेलसी के लिए मुख्तलिफ वर्ड्स यूज करते हैं और उसे पॉजिटिव सेंस में लेते हैं। आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग जो है वो पॉजिटिव सेंस में लेते होंगे। मैंने बहुत लोगों को सुना है, लोग बड़ा फख्र से कहते हैं मैं बहुत पोजेसिव हूं। आपने कभी सुना है ना? पोजेसिव होने का मतलब क्या है कि मुझे बड़ा हसद है, मैं बहुत जल्द हसद का शिकार हो जाती हूं। छुपा हुआ हसद है। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि नाम अच्छे अच्छे रख लिए जाते हैं जिसको कोई बुरा नहीं ख्याल करता, लेकिन छुपा हुआ वो रिएक्शन है। कोई मां के पेट से पोजेसिव पैदा नहीं होता, कोई मां के पेट से हासिद बन के पैदा नहीं होता, गुस्सा करने वाला बन के पैदा नहीं होता, गमगीन पैदा नहीं होता, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर बच्चा दीन फितरत पर पैदा होता है। ये उसके माँ बाप हैं जो उसे यहूदी, ईसाई या मजूसी बना देते हैं, साबी बना देते हैं। यानी ये सोसाइटी के असरात है, माहौल के असरात है। अब आप अपनी जिंदगी देखें कि जिंदगी बदलनी है कुरान से, और आप ये देखते हो कि इस जिंदगी में इतना कुछ शामिल हो गया है। जो जिंदगी आप जी रहे हैं रियली आप ऐसे पैदा नहीं हुए थे, आप ऐसे नहीं थे। रिएक्शंस लग लग के और माहौल के असरात कबूल कर करके आप जैसे इंसान बने हैं, ऐसा रब ने तो नहीं चाहा था कि आप बन जाए। अब हर एक का मामला मुख्तलिफ है, हर एक के लिए मेहनत करने का मैदान है, अपनी जात रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, और आप अपने अंदर तलाश करेंगे। लेकिन मुझे आपका तावन चाहिए। मुझे ये बताएं, इतना बड़ा पहाड़ है, इतना बड़ा मार्का है, इतना बड़ा काम है, क्योंकि हमारी जिंदगी के महू साल जो गुजरे हैं उसने हम पर इतना असर छोड़ा है कि अब समझ नहीं आती कहां से शुरू करें, कहां से शुरू करें इस्लाम को। जानते हैं आगाज कहां से करना है? आऊज़ु बिल्लाह से। जो पढ़ते जाएंगे, इरादा करते जाएंगे, इंशाअल्लाह ताला आगे का सफर तय करते जाएंगे। तो आपने सिर्फ अल्फाज तक नहीं रहना, ये जिंदगी है, जिंदगी की किताब, और जिंदगी में लाने के लिए पढ़ना है इंशाअल्लाह। और अपने माहौल की तब्दीली के लिए, माहौल की तब्दीली के लिए बुनियादी काम ये होता है कि इंसान खुद बदल जाए। जब वो बदलता है, उसके देखने का अंदाज, सुनने के अंदाज, उसके बोलने का अंदाज, उसका बर्ताव, सब कुछ बदल जाता है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना माहौल में तब्दीली, तो वो अपनी सोच दूसरों के सामने जाहिर करता है। देखा है जो कुछ मैंने, औरों को भी दिखला दे, या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। तो बात सादा सी है, हर रोज कितने सारे स्टेप्स पे आप चले जाएंगे इंशाअल्लाह। जो तरीका हमारे रब ने हमें सिखाया, जो हम पढ़ेंगे उसके बारे में हम इरादा करेंगे, उसके बारे में रब से मदद मांगेंगे, दुआ करेंगे, और उसके बारे में कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अब हम चलते हैं शैतान की तरफ, जो हमारा दुश्मन है, जो हमें इस रास्ते पे चलने नहीं देगा। जब आप कोई गेम खेलते हैं तो आपको पता होता है ना हर्डल्स आनी है, ठीक है? तो जब आप कुरान पढ़ेंगे और आप उसके मुताबिक अमल करना चाहेंगे, तो क्या आपको पता नहीं होना चाहिए कि इस रास्ते की रुकावट कौन है? तो बहुत बड़ा एनिमी है, दुश्मन है, जिसने हमारे रास्ते में मौत तक आना है। कभी इस रास्ते को खोटा करने से उसने रुकना नहीं है। तो पहला काम तो यह है कि इब्लीस से दोस्ती नहीं करनी, उसकी बात नहीं माननी, अल्लाह की पनाह में आना। हम नहीं बच सकते, हम कोई दावेदारी नहीं कर सकते, अल्लाह ताला की पनाह मांगनी। तो हम देखते हैं कि शैतान इबादत गुजार था। शैतान इबादत करते हुए नफरमान कैसे बन गया? उसकी इबादत गुजारियों के दिन थे जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा कि मैं एक खलीफा बनाने वाला हूं। फिर आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पैदा किया, फिर फरिश्तों से कहा कि सजदा करो। सबने सजदा किया और इब्लीस के अंदर रिएक्शन लग गया, उसने सजदा नहीं किया। अल्लाह ताला ने उससे पूछा मा मनाका अल्ला तस्जुद, तुझे किसने रोका कि तूने सजदा नहीं किया? उसने जवाबन कहा अना खैरुम मिन, मैं इससे बेहतर हूं। यूं ही रिएक्शन लगता है। रद्द अमल की नफ्सियात इस तरह उभरती है जैसे इब्लीस के अंदर उभरी थी। और आज पूरी दुनिया में आप देखेंगे, पूरी वर्ल्ड में इस बड़े पैमाने पे ये रिएक्शन लगा दिया गया है। हर कोई इसका शिकार है। रियली जो बात इब्लीस ने कही थी आज हर कोई कहता है अना खैरुम मिन। कहने के अंदाज फर्क है, मैं हूं और मैं होता रहता हूं। आप लोगों में से कितने लोग हैं जिन्होंने कभी सेल्फी नहीं बनाई? सेल्फी क्या है? सेल्फ को पोर्ट्रेट करना ना। कितने लोग हैं जिन्होंने सेल्फियां बनाई? मैं उसके अच्छे बुरे होने की बात नहीं कर रही, चलते रही। देखिए मैंने गेम्स में भी कोई तबसरा नहीं किया। आप खेलते हैं, आपने खुद डिसाइड करना है ना, ये आपकी लाइफ है, उसके बारे में मैं डिसीजन नहीं करूंगी। अल्लाह ताला ने आपको ब्रेन दिया है, आप समझेंगे, और वो वक्त आएगा जब आप उसके बारे में इंशाल्लाह राइट डिसीजन करने की पोजीशन में आएंगे। और जो अपनी जिंदगी से प्यार करता है वो जल्द डिसाइड कर लेगा। लेकिन कोई आपको यहाँ पे किसी नौयत के मामले में आप देखेंगे कि हम आप पे इंपोज नहीं करेंगे। आप अपनी सेल्फ के बारे में कॉन्शियस हैं, तो उसको हमें राइट डायरेक्शन पे लाना है। अल्लाह ताला लेके आएंगे इंशाल्लाह। लेकिन अना खैरुम मिन की वजह से इब्लीस के अंदर हसद आ गया, कंपैरिजन में आया ना। जब कंपैरिजन में आया, उसके अंदर हसद पैदा हुआ, तकब्बुर पैदा हुआ। इस वजह से उसने सजदा करने से इनकार कर दिया। फिर उसने क्या किया? उसने इंसान को गुमराह करने के लिए, उसे फरेब देने के लिए, वादों के जाल में उलझाने के लिए अल्लाह ताला से इजाजत मांग ली कि आप मुझे कयामत तक मोहलत दे दें कि मैं इसे अपने वादों के जाल में फंसा लूं। इम्तिहान के लिए तो पैदा किया था,
اب ابلیس نے اس کے لیے یہ مہلت مانگ لی کہ میں بہکا بھی سکوں، بہکانے کی. تو ظاہر ہے کہ جتنا کوئی کسی کے اگینسٹ کام کرتا ہے، حسد آہستہ آہستہ بہت بڑی دشمنی میں بدل جاتا. ابلیس بھی بہت بڑا دشمن بن گیا. تو شیطان کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی برائی پر آمادہ کرنے کے لیے، انسان کو اکسانے کے لیے، اکساہٹیں پیدا کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہٹانے کے لیے. وہ مسلسل دشمنی جاری رکھے ہوئے ہے. شیطان نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، حکم ماننے سے انکار کیا تھا نا، اطاعت سے انکار کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے رجیم قرار دیا، مردود، رد کیا گیا، ریجیکٹڈ. تو ہمیں یہ پتا چلا کہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم آنے کے بعد نہیں مانتا وہ ابلیس کے ساتھ جا کھڑا ہوتا ہے ریجیکٹڈ لوگوں میں. تو ہم نے ریجیکٹڈ لوگوں میں شامل نہیں ہونا. ایوری ٹائم جب آپ اعوذ باللہ پڑھیں گے تو آپ ان ساری باتوں کو یاد کریں گے اور اللہ کی پناہ میں آئیں گے. اور اللہ کی پناہ میں آئیں گے تو آپ کو ابلیس کی دشمنی یاد آئے گی. تو ابلیس کی دشمنی صرف حضرت آدم کے ساتھ نہیں تھی، نسل آدم کے ساتھ تھی، آدم کے بچوں کے ساتھ تھی. آدم کے ہر بچے کو وہ اپنے ساتھ آگ میں لے جانا چاہتا ہے. اس لیے اس دشمنی سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی ہے، ورنہ ہمارا بس نہیں چلتا.